Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. This is me, Ma'am Shaista from TKS Senior Campus. Before going towards our today's written work, let me tell you about the good words of the day. The expert in everything was first a beginner. मतलब जो पहले जो अभी जो experts हैं ना वो पहले किसी काम में मतलब इतने एक्सपर्ट नहीं थे जो अभी मतलब बिगिनर्स थे वो मतलब जो भी काम करते हैं ना दैट वाज अ बिगिनर्स फर्स्ट. ओके, ऑल ऑफ यू स्टार्टेड योर वर्क क्योंकि हमने सैटरडे को रिटर्न वर्क स्टार्ट किया हुआ था. तो ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वन पेज. Okay, now I will go towards the next page. Okay, of the words meanings. Okay बच्चे, I have done 5 words meanings, right? सबने 5 लिखे थे. अनस, let me ask from you people randomly. मैं किसी बंदे से पूछ लूँगी 5 अगर किसी ने किए तो. अनस, Yes, ma'am. आपने 5 किए थे. Ma'am, yesterday was absent, ma'am. So I will लिखूंगा. नहीं बच्चे, आप तो सैटरडे को थे. Ma'am, नहीं थे ma'am. Starting के फर्स्ट 2 क्लासेस था फिर बाद नहीं. अच्छा, मैंने इसकी पिक्चर्स ग्रुप में भी सेंड की हुई है. अच्छा, Yes, ma'am. ओके. Saad Waqas, you have done how much words meanings? साद Ma'am, 6. 6 किए थे. ओके जी, बोले. अच्छा जी मिसबा. ओके, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स मीनिंग्स नंबर 6. ओके, 6 से स्टार्ट करते ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो. क्लियर? ओके, फर्स्ट 6th वन इज ट्रांसेंड. TRANSCEND. word is TRANSCEND. its meaning is beyond the limits. BEYOND, the limits. LIMITS. done. Okay, now we will go towards word number 7. That is guilty. GUI. बच्चे, अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब अगर किसी ने फिर भी अगर लेफ्ट की तो इन आई विल सेंड. अदरवाइज मैं बोल रही हूँ तो आप लोग राइट करें. अच्छा, GUILTY, guilty. its meaning is feel. FEEL, unhappy. Okay, word number 8, empathically. EMPATHICALLY. its meaning is strongly, expressive. EXPRESSIVE, speech. Clear? The next word is magnitude. मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं. MAGNITUDE. MAGNITUDE. its meaning is importance of something. Done.
Next word is intercede. intercede. Write down its meaning. To speak. To speak in support of someone in order to prevent from punishment. Okay, next word is okay. But let's wait for the other members. Okay, next word is investigation. 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 Its meaning is inquiry or examination. Done. Next word is ignorance. Lack of knowledge. Next word is fairness. FAIRNESS. Okay, fairness meaning is discrimination. DISCRI NATION. Last word is barrier. BARRIER. यार ये वैसे बोले ना, ये वाला तो वैसे बोले, अगर मैं इसे लिखूँ barriers meaning is obstacle. OBSTACLE. Done. All of you have done. अगर किसी का रहता है तो यू कैन आस्क और यू कैन रेज अ हैंड अगर किसी ने कोई वर्ड मिस किया हो, अदरवाइज आई विल गो अहेड. All of you have done? Okay. Prepare your next page for the words sentences. Malak Hussain, but you are too slow. Okay. But all of you, those who have done, prepare your next page for the words sentences. Fasi, are you doing the work? Fasi is here or not? ये Oppo A83 कौन है? बच्चे प्लीज़ राइट योर नेम. जी बच्चे, पेज पर आप लोगों ने डेट एंड डे राइट करने, जिस तरह आप लोग क्लास में लिखते हो ना, बिल्कुल उसी तरह पेजेस प्रिपेयर किया करें.
Okay, all of you go towards the words sentences. Prepare your pages. May I remove this one page? Okay. Page is clear? There are 10 words meanings. 1. Okay, first word is desires. DESIRES. आई विल सेंड, मैं सेंड कर दूंगी. आपने कितना किया है मलिक हुसैन? First word is desires. Its meaning is we have a natural desire to want to help others. Done. It's मैम 10 तक क्या? अच्छा आपने 10 तक किए. 4 is left. Okay, I will send. Desires. Its sentence is we have a natural desire to want to help others. Clear? Next word is justice. JUSTICE. टेन वाला. अच्छा. Intercede. To speak in support of someone in order to prevent from punishment. मलिक हुसैन आप बच्चे टेंशन ना ले, मैं सेंड कर दूंगी. अच्छा ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी. There are 14 words meanings. इस दफ़ा हमारे कोर्स में वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड सेंटेंसेस चैप्टर के बेस पे, तो पहले से पेजेस प्रिपेयर ना करें. अच्छा मैं जो बताऊंगी तो इतने वर्ड्स मीनिंग्स है, इतने वर्ड सेंटेंसेस, तभी आप लोग उसको प्रिपेयर करेंगे. ऐसे पहले से ना करें जिस तरह हम लोग क्लास में करते थे ना कि 5 वर्ड्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस. इस दफ़ा ज़्यादा हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ जस्टिस. इट्स सेंटेंस इज़, जी बच्चे मानूर जी बोले. Okay, its sentence is we should strive to achieve justice for all people. We should STRIVE to achieve ACHIEVE. बच्चे हैंड रेस कर रहे. जब मैं अनम्यूट करने लगती हूँ तो आप लोग का हैंड वो मुझे पे नज़र नहीं आता. जस्टिस फॉर ऑल पीपल. Instruct. INSTRUCT. Instruct meaning is, sentence is, sorry, he is also a good instructor. He is also a good instructor. Okay, next word is sake. SAKE. I need your help for sake of humanity. HUMANITY. Done.
Next word is mentions. MENTIONS. ओके बच्चे, बिफोर नहीं होता, आफ्टर हैंड राइटिंग जिस तरह आप कॉपीज में करते हो. ओके, mention. Do not mention my name in the list. Next word is affair. AFFAIR. Okay, a sentence is I will look after your affairs when you are dead. Done. Next word is fair. FEAR. Its sentence is he told us all about his hopes and fears. Done. Next word is अच्छा. मेरी बैग में बुक पड़ी हुई, सॉरी आपको बाबा था वो लिखे हैं इंग्लिश की क्लास 8, उसके ऊपर लिखा होगा 7 लिखा हो या 8 लिखा. अच्छा सही है खैर. ओके, फेयर. ही टोल्ड अस all about his hopes and fears. Done. Okay, next word is favor. FAVOUR. Its sentence is I need a favor to solve the problem. I need a favor to solve the problem. Done. Next word is aspect. ASPECT. ओके बच्चे, यहाँ पे आई ना लिखे. अच्छा, यू कैन राइट एम कैपिटल. इमेजिनेशंस हैं. IMM, सॉरी, IMM. आई विल राइट दिस स्पेलिंग हेयर कि आप लोगों को क्लियर हो जाए. इमेजिनेशन इस तरह लिखें. affects every aspect of our lives. इमेजिनेशन का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला राइट कर ले. एक्टिविटी. ACTIVITY. The town was full of activity. Done. ओके बच्चे, ऑल ऑफ यू लिसन टू मी. आप लोग एक पेज पे अपने पास राइट करते हो या इस तरह, अगर आप लोग मतलब समझते हो ना. पेज नंबर, खैर मैं थोड़ा सा टाइम होमवर्क देती हूँ बच्चे. पेज नंबर 6
देयर इज अ exercise number B. Respond to each statement by writing an explanation as to why you agree or disagree. देखिए इसके सारे स्टेटमेंट्स आप लोग राइट कर लें, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, बच्चे पहले ये समझे। पेज नंबर 6 है, आप लोगों ने कॉपी पे क्या करना है, वर्ड सेंटेंसेस के बाद ये स्टेटमेंट्स पूरी राइट करनी है, क्लियर। इसके बाद आप लोगों ने ये सेंटेंस भी राइट करना है, क्लियर। ये भी राइट करना है। ये दो राइट करने के बाद आप लोगों ने 3 लाइन्स के वो छोड़ने हैं, क्लियर। फिर तीसरा ये वाला राइट करना है, फिर इसके नीचे ये वाला एग्री और डिसएग्री वाला लिखना है, फिर 3 लाइन्स छोड़ने। कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सेंड करूँगी, बताऊँगी इधर, क्लियर। पहले पेज नंबर 6 देके इसके ऊपर ये वाला सारा स्टेटमेंट लेके नंबर 1 लेके ये स्टेटमेंट लेके इसके नीचे ये वाला स्टेटमेंट पे राइट कर ले। फिर इस स्टेटमेंट के नीचे आप लोग 3 लाइन लीव कर ले, 2 ना लीव करें क्योंकि काम ज़्यादा है। फिर 2 नंबर स्टेटमेंट लेके ये सेंटेंस लेके इसके नीचे स्टेटमेंट भी लेके फिर 3 लाइन्स लीव करे। इस तरह 4 लेके ये भी लिखे एग्री और डिसएग्री, इसके नीचे फिर 3 लाइन लीव करे। इस तरह 4 भी लेके ये दोनों लेके फिर 3 लाइन लीव करे। समझ आ गई मेरी बात की? नेक्स्ट पेज पे तो नहीं बस सिर्फ इतना है, क्लियर। सिर्फ 4 है तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। समझ आ गई बात की? जी कॉपी पे लिखना है, ये नीट कॉपी पे ही लिखना है। आप लोगों ने क्या लिखना है, जिस तरह हम लोग लिखते हैं ना पार्ट नंबर बी, ये बी भी लिखना है। ये सारा स्टेटमेंट लेके इसके नीचे ये वाला स्टेटमेंट लेके फिर ये वाला ये 2 वर्ड्स लेके 3 लाइन लीव कर ले, फिर ये वाला लेके ये स्टेटमेंट फिर 3 लाइन लीव करे, फिर ये वाला ये स्टेटमेंट लेके फिर 3 लाइन लीव करे, क्लियर। अगर किसी के एक लाइन में भी आते हैं लेकिन बच्चे आप लोगों का काम फिर नीट हो जाएगा। समझ आ गई बात की? थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, ओके, अल्लाह हाफिज़।